भारतीय तट रक्षक बल ने डिफेंस एक्सपो 2022 में भाग लेते हुए आम लोगों को कोस्ट गार्ड की गतिविधियों और क्रियाकलापों से परिचय कराने के लिए कोस्ट गार्ड राज्य मुख्यालय पोरबंदर में एक शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें पोरबंदर के आसपास के आम लोगों को आमंत्रित किया गया और कोस्ट गार्ड की गतिविधियों से परिचय कराया गया। प्रदर्शनी में तट रक्षक बल ने अपने इतिहास से लेकर आधुनिक रूप और कौशलता को प्रदर्शित किया। आइए चलते हैं प्रदर्शनी स्थल पर और तट रक्षक बल के अधिकारी कमांडेंट जूनियर ग्रेड रौनक सिंह से कुछ जानते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। एज अ पार्ट ऑफ दैट वी हैव प्लेस्ड द मॉडल्स ऑफ शिप जो कि इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुई है, इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर डिफेंस PSUs. For that matter, we have Goa Shipyards model. We have the aircraft which are being manufactured by Hindustan Aeronautical Limited. To start with, we'll start with the firefighting items. We have displayed these firefighting items which we periodically, as and when required, हम इस्तेमाल करते हैं for all the mariners who are in distress. For that matter, this is the water jet spray nozzle which we use. If you can see in that photograph, one of the fishing vessel is being doused with the fire using the same hose and same nozzle. We have a thermal imaging camera. This is being utilized to check where the impact of fire is more. हमें वो thermal imaging आता है. Just one switch on, I'll show it to you. If you can see, it gives the temperature. As of now, the 25 degrees. If you look towards the AC, it has a laser segment which checks it and then informs. So wherever the impact of fire is too high, we show it over there. This gives the intimation to the firefighter कि वहाँ पर आग सबसे ज़्यादा है और हमको सावधानी से जो है वहाँ पर एंटर करना है। Moving further, sir, if any queries, kindly let me know. Yeah. This is a diving area. These are life jackets which are as such you all might be available. It is aircraft में भी use करते हैं, on board ships तो बहुत ज़्यादा ही. These are being thrown to the persons who are basically drowning at sea, especially the fishermen if in case, if in distress. Live buoys for the same purpose so that they can hold, उसको control करके and then we can try and get them. This is a diving suit. Our divers periodically go for as and when required. For that matter, for search and rescue, for helping out the people. They dive into the sea. They use this oxygen cylinders which has an endurance of about 1.5 hours. They have a communication set in that they can communicate on board ship, which we call a mother vessel. There they communicate. This is a 4-man life raft. If in case some people are, because every vessel, जो भी मच्छी बोट रहती हैं, तकरीबन 7 से 8 का क्रू रहता है. So we have to cater that. We have placed a 4-man life raft over there. यहाँ पर सर्वाइवल किट रहता है. आदमी कम से कम नहीं भी तो 15 दिन जो है वो सस्टेन कर सकता है विद ऑल दिस आइटम्स. इसमें चप्पू भी है. वी हैव रोज वेयर इन दे कैन ट्राई एंड फ्लोट एंड देन पंप. जनरली वी थ्रो इट थ्रू द डॉर्नियर्स. इफ इन केस वी डोंट हैव अ वेसल ओवर देयर एंड डॉर्नियर इट सीज दैट की somebody is drowning, they can throw it immediately always on the incident intimation to us. They throw it, it opens up automatically. People can try and swim and then come and stay over here, and then later on the ship can rescue them. Then we have our arms which we periodically use. As we are aware, every armed forces, every security forces require the arms for the safety and security. Majority of the arms displayed over here, these are manufactured by erstwhile Ordnance Factory. We have GVPC carbine, we have medium machine gun, light machine gun and the INSAS 5.56. These are our Gemini boats which we continuously use for boarding operations. Boarding is also very important. Or the fish, how is these Geminis along with the OBM, इनको इस्तेमाल करके हमारी बोर्डिंग पार्टी जो है, जो तकरीबन 7 से 8 लोग रहते हैं, वो बोर्ड करने के लिए जाते हैं. As in the figure, if you can see, that's a rib, rigid inflatable boat. So that is the other part of the type of Gemini. अब उस जगह पर चलते हैं जहां से तट रक्षक बल के अधिकारी जहाज को संचालित करते हैं और जहाज के ऊपरी हिस्से से डेमोन्स्ट्रेशन को भी देखते हैं, जहां एक
समुद्र में डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया है। मैं डीआईजी एसआर पाटले हूं, इस जहाज का कमान अधिकारी। ये जहाज 105 मीटर्स लंबाई का जहाज है। विल बी गिवन बाय माय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंटल इंचार्जेस व्हेन वी गो अराउंड द शिप। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑन बोर्ड शिप। नाउ आई कॉल इस अवसर पर समुद्र के अथाह गहराई में तटरक्षक बल किस तरह से काम करते हैं, जिसमें समुद्री गश्त, किसी संदेह वाली नौका या जहाज को कब्जे में लेकर जांच करना, समुद्री रास्ते के जरिए होने वाले गैर गतिविधियों को रोकना, डोनियर वायुयान जो तटरक्षक बल का प्रमुख जहाज है उसके द्वारा समुद्र के हवाई क्षेत्र पर नज़र रखना, समुद्र में किसी हादसे के दौरान तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर द्वारा डूबते व्यक्ति को सुरक्षित निकालना आदि का प्रदर्शन करके तटरक्षक बल ने अपनी कार्यक्षमता और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करके यह दिखाने का प्रयास किया कि भारतीय तटरक्षक बल भारतीय समुद्री सीमा की हिफाजत के लिए 24 घंटे सतर्क, सजग और त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार है। हम बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल भारतीय समुद्री सीमा और समुद्री कानून की रक्षा करते हैं। यह भारतीय समुद्री सीमा के भीतर रहकर ही काम करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को कोस्ट गार्ड एक्ट के तहत की गई थी। यह भारत का स्वतंत्र सैन्य बल है और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। हम यह भी बता दें कि भारतीय तटरक्षक भारत की दूसरे एजेंसियों जैसे भारतीय नौसेना, मत्स्य विभाग और राजस्व विभाग के साथ मिलकर काम करता है। भारतीय तटरक्षक बल का पहली बार प्रस्ताव भारतीय नौसेना ने रखा था ताकि भारतीय समुद्री सीमा को गैर सैन्य सेवा मिल सके। 1960 के दशक में समुद्र के जरिए होने वाली स्मगलिंग भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए कस्टम विभाग हमेशा भारतीय नौसेना को बुलाता था। इसके बाद नाग चौधरी कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने ज़रूरत को समझते हुए एक नए बल के गठन का सुझाव दिया। भारतीय समुद्री सीमा में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने की जिम्मेवारी भारतीय तटरक्षक बल के पास है। इसके अलावा भारतीय समुद्री सीमा में मछुआरों को सुरक्षा देना भी तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड की प्राथमिक सूची में शामिल है। डिफेंस एक्सपो 2022 में तटरक्षक बल ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया उससे आम भारतीय, विशेष रूप से समुद्री सीमा के निकट रहने वाले आम भारतीय को तटरक्षक बल पर गर्व होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आकाश श्रीवास्तव, पोरबंदर, गुजरात।